Hello everyone, my name is Shishpal Chauhan and I am on Graphy, and the name of my website is shishpal.graphy.com, and this is live session free of cost on direct and indirect speech. Yesterday we had first live session on direct and indirect speech, that is also called quoted and reported speech or narration. It was the first session on this topic. Today we are taking the second topic on direct and indirect speech. Let's move to the second topic. Let's see the content. We have done up to this second. Okay, this will be our topic now. Changing of says to, says, or said to, or said. Up to now we have done what is direct and what is indirect speech. Then I told you about the technical terms like what is the subject and what is the object in direct speech, what are the reporting verbs, and then how the pronouns of first person change, the pronouns of second and third person change. Then I told you about the reporting verbs, how the reporting verbs change. Let's proceed now. Says to changes into tells because this is present tense and s is there, so s will come here. Then if you haven't got to here, it means no listener is there, no subject is there, so says will remain says. And said to will be changed into told, this is past tense, so say becomes said, said becomes told, and said remains said because there is no object here, listener is there. When there is no listener, then while converting the direct speech into indirect one, you will put only that. You will not use told, right, or tells. Conjunction will be that here, only that will be used because we are talking about statements, positive and negatives. Changing of tenses in reported speech. Today we are discussing the changing of tenses, how tenses get changed in reported speech. So note down the rule number 1. If the reporting verb is in present or future tense, that is says to or says, will say or will say to, this is future tense. The tense of the quoted speech will not be changed while reporting. And let me explain in Hindi also. यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, मीन्स सेज टू है या सेज है अकेला, विल से टू या विल से है या शैल से है, तो कोटेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा रिपोर्टिंग करते वक्त. जब आप रिपोर्टिंग करोगे, दैट लगाओगे और टेंसेस को बदलोगे, प्रोनाउंस को बदलोगे, तो टेंस नहीं बदलना आपको. फर्स्ट रूल ये कहता है you are not going to change the tense, right? तो एग्जाम्पल आपको देते हैं. says to रिपोर्टिंग वर्ब है, आप जानते हैं, और ये कंजंक्शन है that. says to will become tells because says to is in present tense, to is there, listener is there, me is the listener, तो to के बाद listener आता है. that लगाया आपने, you have removed commas here. I pronouns of first person will change according to this subject. Subject is third person, singular pronoun he will be used here. Instead of I, you will use he. I की जगह आप ही यूज़ करोगे. टेंस आपको बदलना नहीं है. हैज़ हैव में से एक ही लेना है. ही के साथ हैज़ आता है. नॉट डन थर्ड फॉर्म लेगा ही लेगा. माई को हिज बनाया आपने, इसका इक्वलेंट है. ही थर्ड पर्सन है, तो माई का हिज बना पोजेसिव, राइट. आगे बढ़ते हैं. चेंज ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस की चेंज कैसे हुई? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार. जो स्पीकर होता है, स्पीकर यहाँ पे ही है जैसे, राइट. तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है आई. जो कोमास के अंदर प्रोनाउन होते हैं उनको कैसे बदला जाए, तो ये रूल उसके बारे में बता रहे हैं कि आप सब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे. यू विल चेंज द प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, दैट इज सब्जेक्ट. So we have I and my, these two pronouns here,
and these will be changed into the pronoun of the subject, that is third person, and it's a singular pronoun. So instead of I you will write he, instead of my you will use his, right? तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर हो गया. ही टेल्स मी दैट ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क येट. टेंस आपने नहीं बदला बिकॉज योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस. ये रिपोर्टिंग वर्ब है, दिस इज इन प्रेजेंट टेंस. देन डू नॉट बॉदर about changing the tense of the reported speech. Pronouns of the second person change according to the object. The listener के अनुसार बदलेंगे प्रोनाउन सेकंड पर्सन के. लिसनर जैसे ये है, मी है यहाँ पे, तो मी का यहाँ पे आई बनेगा क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन मी के अनुसार मी इज इन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन. तो ये जो इसकी केस है, 4 केस होते हैं प्रोनाउंस के, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव. 4 केस होते हैं. दिस इज ऑब्जेक्टिव केस. ये ऑब्जेक्ट बनता है, मी हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है. माई पॉजेसिव होता है, हालांकि वो ऑब्जेक्टिव माना जाता है. माइन प्योर पॉजेसिव प्रोनाउन है. तो मी है तो फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में तो आई बनेगा सब्जेक्ट. आपको यू की जगह पे सब्जेक्टिव केस चाहिए, जो सब्जेक्ट बने हैं. यहाँ आप मी को मी नहीं कह सकते. मी वॉज नॉट फॉलोइंग ये नहीं कहोगे, आई वॉज नॉट फॉलोइंग. तो सेड था इसलिए टेंस आपने वाज में ले गए आप. तो टेंस इसलिए बदला बिकॉज योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस. सेज होता तो टेंस ना बदलता. और हिज कैसे आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ माई था. माई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे उसका हिज बनेगा इक्वलेंट पॉसेसिव केस. तो आगे बढ़ते हैं. प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन ही, शी, इट, हिज, हिम, हर्स, दे डू नॉट गेट चेंज्ड. थर्ड पर्सन के प्रोनाउन बिल्कुल नहीं बदलते. He said to his friend, people are worrying about the rise in prices of petrol and diesel these days. तो चेंज कीजिए. फर्स्ट चेंज सेड या सेड टू की होती है, टोल्ड में बदला आपने, और कोमास हटे तो कंजंक्शन आपने दैट लगाया. पीपल थर्ड पर्सन है, इट विल रिमेन द सेम. सेड टू पास्ट टेंस है तो टेंस बदलेगा. इज एम आर की जगह आप वाज पर में से एक लगाओगे. पीपल प्लूरल है, देयरफॉर इट विल टेक वर इंस्टेड ऑफ वाज. were worrying about the rise in prices of petrol and diesel these days का those days बनेगा. The words showing nearness become the words showing distance. I think ये कल के वीडियो में हो चुके थे. लेक्चर 2 यहाँ एंड अप हुआ था. ओके, आगे बढ़ते हैं हम. दिस इज चेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस वीडियो लेक्चर नंबर 3. यहाँ से हमें शुरू करना था. चलो आपका रिवीजन हो गया. Now rule 2 is, if the reporting verb is in the past tense, that is said or said to, and the quoted speech contains universal truth, its tense will not get changed while reporting. तो पहला रूल आपने देखा था कि टेंस कब नहीं बदलता, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है. इंस्टेड ऑफ said or said to, if you have got says या say to or will say या shall say, then you are not going to change the tense of the reported speech. But now the tense is in past tense. reporting verb आपका past tense है, तो कोमास के अंदर जो भी टेंस होगा वो बदलेगा, उसके corresponding past tense में बदलेगा. राइट, तो आगे देखते हैं क्या होता है. He said to me, water boils at राइट, लेट मी टेल यू. हाँ, ये रूल थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं दोबारा. इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस है और कोटेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई सच्चाई है, सामान्य सच्चाई, यानी मैथमेटिकल ट्रूथ, साइंटिफिकल ट्रूथ, जियोग्राफिकल ट्रूथ, कोई भी हैचुअल ट्रूथ हो, तो टेंस नहीं बदलता. 2 सिचुएशंस हैं जब टेंस नहीं बदलता. पहली सिचुएशन ये है कि बाहर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर में, तो देन in the reported speech we are not going to change the tense. Second situation is that reporting verb is in past tense, but
there is universal truth inside the or inverted commas you can say, then you are not going to change the tense of the reported speech. बनाते वक्त टेंस नहीं बदलोगे. एग्जाम्पल आपके सामने था, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस इन नॉर्मल सिचुएशन. तो सिर्फ आपको सेट टू को टोल्ड बनाना है, ये चेंज तो रहेंगी, कोमा हटाओगे दैट लगेगा. दैट से जोड़ा सेंटेंस आपको कंटिन्यू रखना है. W विल बी स्मॉल, जो भी यहाँ फर्स्ट लेटर होगा वो चेंज हो जाएगा, छोटा बनेगा, स्मॉल बनेगा. आगे टेंस बदलना नहीं, सेम रहेगा. वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस इन नॉर्मल कंडीशंस. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द ईस्ट और द वेस्ट होम इज़ द बेस्ट. तो उसी तरह का सेंटेंस है. दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, सामान्य सच्चाई है. ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट प्रोवर्ब है. कहीं भी चले जाओ तो घर सबसे अधिक प्यारा होता है. सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू टोल्ड. You will put that here instead of commas. Conjunction that will be here. That the east or the west home is the best, ये same रहेगा. Rule 3. If the reporting verb is in the past tense and the quoted speech does not contain any universal truth, its tense will be changed into its corresponding past tense. अब दो रूल थे, फर्स्ट और सेकंड में आपने टेंस नहीं बदला. हालांकि पहले रूल में सेज टू प्रेजेंट टेंस था, जो रिपोर्टिंग वर्ब थे फ्यूचर टेंस था, इस वजह से. और सेकंड में हालांकि रिपोर्टिंग वर्ब वाज इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होते हुए भी टेंस आपने नहीं बदला, बिकॉज द इन्वर्टेड कॉमास कंटेन्ड यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ. अब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं मिलेगी आपको. देयरफॉर यू विल चेंज द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस. जब आप डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कोमास वाले वर्ड्स को रिपोर्टिंग करोगे, उसकी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करोगे तो टेंस बदलेगा. अब कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस साथ साथ समझ लीजिए क्या होते हैं. अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो फर्स्ट फॉर्म का कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस क्या होता है? सेकंड फॉर्म का हैड प्लस V3 होता है. डू डज का डिड होता है, डिड का हैड प्लस V3 होता है. इज एम आर का वॉज वर होता है, वॉज वर का हैड बीन होता है. कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है. तो विल शैल को वुड में बदलते हैं आमतौर पे, शुड नहीं बनाते. वो मॉडल ऑक्सिलरी शुड नैतिकता का मैसेज देना शुरू कर देता है. और बहुत सी बातें साथ साथ आप समझते जाओगे. एग्जाम्पल लेते हैं. शोभना सेड टू हर हस्बैंड यू डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. शोभना इसमें स्पीकर है. पहले तो आपको ये देखना है कि जब कोई सेंटेंस आपको एग्ज़ाम में आए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, यू आर गोइंग टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, देन see whether the sentence is statement or interrogative or exclamatory or any other type of the simple sentence. तो आपको जज करना है कि वो किस टाइप का सेंटेंस है. ये असर्टिव है तो वही रूल लागू होंगे जो हम कर रहे हैं. सेट टू को आप टोल्ड में ले जाओगे. कोमास विल बी रिमूव्ड एंड यू विल पुट कंजंक्शन दैट. अब आगे की कहानी शुरू होती है. अंडरलाइन करो जो जो आपके प्रोनाउंस हैं जिनको बदलना है. यू प्रोनाउन है और इसमें और कोई प्रोनाउन नहीं है. डीज बदलेगा, नियरनेस शो कर रही है. और डू डज इसमें बदलेंगे. डू इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल में बदलता है, ये ध्यान रखना. तो दैट के बाद क्या लगा? प्रोनाउन यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू हर हस्बैंड. हस्बैंड थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये ही बना. डू डज का डिड बनेगा. ही डिडंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग दोज डेज. डीज का दोज बना. चेंज ऑफ टेंसेज. द फर्स्ट फॉर्म, ये कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस की बात करें. द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बिकम्स सेकंड फॉर्म. अगर इन्वर्टेड कोमास में आपको फर्स्ट फॉर्म मिले तो उसको सेकंड फॉर्म में बदलोगे. डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म को डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में बदलोगे. मीन्स simple present tense changes into simple past tense. This is the summary of the first rule. Okay, simple present tense का corresponding past tense क्या हुआ? Simple past tense. एग्जाम्पल ले लेते हैं फर्स्ट फॉर्म का. डायरेक्ट है. आई सेड टू हिम शी स्टडीज टिल लेट नाइट दीज डेज. स्टडीज क्या है? दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आप फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट फॉर्म.
और सेट टू आप जानते हैं टोल्ड में बदला और कॉमा हटे दैट लगा, दो चेंज तो आप फटाफट कर दोगे। फिर आपको रुकना है प्रोनाउन पे। प्रोनाउन शी इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन डू नॉट गेट चेंज्ड, सो इट विल रिमेन शी। स्टडीज पास्ट फॉर्म है, इट विल बिकम सेकंड फॉर्म स्टडीड। शी स्टडीड टिल लेट दोज डेज, डीज का डोज बना। ओके, सेकंड सेंटेंस है आई सेड टू हिम शी डज नॉट स्टडी टिल लेट। ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव समझना बहुत ज़रूरी है, आपको डिफरेंस पता लगेगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है, तो फर्स्ट फॉर्म को आप सीधे ही सेकंड फॉर्म में ले जाओगे। अगर नेगेटिव है तो आप फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में नहीं ले जाओगे, डू डज होंगे तो डिड में बदलेंगे। तो ये बना सेट टू, आपने टोल्ड में चेंज किया, सेट टू हो गया और दैट लगाया और सी का सी रहा, थर्ड पर्सन थी। और अब डिड किसका बनाया आपने, डज का डिड में, डू डज हो डिड में बदलते हैं। तो लेट नाइट दीज का दोज बनाया। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अप टू नाउ, आप ज़रूर समझ गए होंगे अब तक। तो आगे बढ़ते हैं। The interrogative sentences of the simple present tense becomes an assertive sentence of the simple past tense. Interrogative sentence हम अलग से लेंगे, टेंस वाइज लेंगे, बट क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है, उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी यहाँ देख लेते हैं कि किस तरह से आपको बदलना है। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपको कंजंक्शन लगाना है इफ़ या वेदर, आप दैट नहीं लगाओगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। डू यू गो टू अटेंड म्यूजिक क्लासेस दीज डेज, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, आपको इफ़ या वेदर लगाना। अगर वो WH फैमिली से है तो आप उसी को लगाओगे, इफ़ या वेदर नहीं लगेगा। और सेंटेंस के फॉर्म असर्टिव हो जाएगी, फुल स्टॉप आएगा। मीन्स सब्जेक्ट से पहले आपको वर्ब नहीं लगाना। जैसे यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और डू इसका फाइनाइट वर्ब पहले था, अब ये फाइनाइट वर्ब आगे जाएगा जो भी इसका बनेगा। तो सब्जेक्ट इफ कंजंक्शन के बाद एकदम सब्जेक्ट आएगा। यू सेकंड पर्सन था, विल चेंज अकॉर्डिंग टू फ्रेंड, फ्रेंड बना ही। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है तो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में ले जाओगे। अगर ये नेगेटिव होता डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में बदलता तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ जाएगी। इफ ही वेंट टू अटेंड म्यूजिक क्लासेस, दीज का दोज बना। अब ये नेगेटिव का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये डिड कैसे रहेगा। आई सेड टू माई फ्रेंड, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, ये चेंज मैं भूल गया था बतानी आपको। सेड टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड में बदलते हैं, ध्यान रखना। और कंजंक्शन इफ़ या वेदर लगते हैं बिकॉज दे बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब से बिगिन हो रहे हैं। देयरफॉर वेदर या इफ़ लगाओगे और सब्जेक्ट पहले आएगा, यू का ही आया और डू डज को डिड में बदला बिकॉज नॉट वाज देयर। इफ़ ही डिड नॉट गो टू अटेंड म्यूजिक क्लासेस दोज डेज, दीज का दोज बना। तो डज वाला भी देख लो। आई सेड टू माई फ्रेंड डज शी नॉट गो टू अटेंड म्यूजिक क्लासेस दीज डेज, तो सेड टू का आस्क बना। कंजंक्शन इफ होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन में, और शी का शी रहा, थर्ड पर्सन और नो चेंज। डू डज डिड में बदले और दीज का दोज बना, सेम सेंटेंस। और अब सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस का आपको ये भी करा देते हैं। द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये हैड प्लस V3 में जाएगी। ये कल करेंगे हम, इसको यहीं रोक लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आई होप सो। लेट मी एंड अप दिस सेशन हियर। Tomorrow we shall meet at the same time if everything goes well. So till then, have a nice day. Thank you. Let me end up this session.